Assalamualaikum everyone. I hope you all guys can hear me. Hello everyone. Assalamualaikum. Let me see the people whether they are here or not. You guys are coming, so I'm just waiting कि हमारे पास viewers हो जाएं so I could officially start. I could communicate, and we are having people here, so it's great to see all of you here. So myself, Sayyida Mashia Fatma, I'm a member of Global Youth Association, and right now I'm working as General Secretary Multan, plus I'm a Director Literacy Club. And before going to the official session, before starting anything else, I would first like to thank Mr. Zishan Jahangir, who is the founder of Saints Foundation and is working as a director head. He's leading the Multan chapter, you can say. And Mr. Kadir, he's the president as well as founder of Global Youth Association. And this session is being conducted thanks to them under the conclusive, constructive information of them, help of them, you can say. All right. So before beginning, let me tell you that we are here to talk about transgenders, that how we can communicate with them, how we can give them a forum, and how they can come and interact with all of us. Before 2017, transgenders were not even included in consensus. We have 3 lakh, round about 3 lakh transgenders here in Pakistan, but they don't have rights. They don't have right to speak, right to communicate, right to come. Although many of the changings have been done and people are going in a progressive way, but still there's a long, long way to go. GOI is giving them the forum rather than the traditional media and their TRP and ratings. We are bringing the well-educated transgenders in our forums. They could communicate, they could give their message. Here I have right now at the moment, I have Alisha Shirazi, which is a very, very good a human activist and a transgender. Let me take her on board. Assalamu alaikum, Alisha. Right now, हम Alisha को ले रहे हैं. I hope she will be here. Alisha. She is working very well. वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट आप देखें कि बहुत कम लोग हैं जो एसएच आए हैं हमारे पास सामने. जूली के बारे में हम जानते हैं, लास्ट सेशन हुआ था GYA का जूली के साथ. शी इज वेरी टैलेंटेड, I don't know, very talented identity. She's projecting her case in a very good way. Alisha is projecting the case of transgender community in a very, very good way, and I'm trying to keep her here. Alisha, आप मुझे सुन सक रही हैं? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अलीशा. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? आप सुनाएं, आप मुझे सुन रही हैं? मेरी ऑडियो क्लियर है? हाँ जी, लेकिन आपकी तरफ आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है. इंटरनेट का इशू आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या मेरा विजुअल क्लियर नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल. आपकी वीडियो भी विजुअल सही नहीं आ रहा आपका, और ऑडियो भी आप किसी तरह से ही आ रही है. और मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक हो जाए, हम ऑफिशियली सेशन को कंटिन्यू कर सकें ना. जी, कैसी हैं आप? ठीक है. मैं ठीक. आप सुनाएं. जब तक हम कंटिन्यू करते हैं, अलीशा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू. अगर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो अबाउट यू, कुछ जानना चाहेंगे वो आपके बारे में, लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Can you hear me? Something went wrong. अब मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी. Okay. Alisha, I would like to know your brief introduction. Like थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं आप. हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ग्लोबल यूथ एसोसिएशन का कि जिन्होंने मुझे आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए अपनी कम्युनिटी के बारे में. तो मैं अपने बारे में छोटा सा बस इंट्रोडक्शन है मेरा, मैं बताती हूँ. मेरा नाम अलीशा शिराजी है और मेरा ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है. और
मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में, और इस वक़्त जो है मैं कंसल्टेंट हूँ जेंडर माइनॉरिटीज़ के यूनाइटेड नेशन में, और उसके अलावा मैं एक एक्टिविस्ट हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटा-मोटा काम जो होता है अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं वो यहाँ इस्लामाबाद में कर रही हूँ, और अब मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई। वेरी नाइस। अलीशा, हमने देखा कि मतलब आप वेल एजुकेटेड हैं, मतलब आपने पढ़ाई की है, आपने नामवर यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, तो आई वुड लाइक टू नो कि क्या-क्या डिफिकल्टीज आए थे आपके एजुकेशन करियर में, और आपके पेरेंट्स ने आपका कितना साथ दिया इस सब में? जो आप जहाँ पे हैं आज, आपने जो अचीव किया है, उसमें आप क्या कहेंगी? किसका कैरेक्टर है, किसका रोल है? देखिए मशीहा, ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है मेरी, अगर आप ये सुनेंगी इस एजुकेशन का मेरा जो प्रोसेस है। एक्चुअली मैं छोटी ही थी कि जब अम्मी-अब्बू की डेथ हो गई थी, तो आप समझ सकती हैं कि एक बच्चा माँ-बाप के बगैर जो है कैसे परवरिश पाता है या एजुकेशन कैसे वो लेता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने तलीमी अखराजात पूरे किए हैं, मतलब कि आप कह सकती हैं कि एक टिपिकल ट्रांसजेंडर की तरह मैंने भी डांसिंग और बैगिंग और सब कुछ किया, और फिर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के धक्के भी खाए हैं। मेरा जो बीए बीएड है एजुकेशन यूनिवर्सिटी का है, और मास्टर्स सरगोधा यूनिवर्सिटी का है, और फिर एमफिल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का है। तो मेरी ज़िंदगी जो थी ना, पूरी डाइवर्सिटी पे थी, बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस थे हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से भी और सर्वाइविंग के लिहाज से भी। ऑलराइट। ओके, आई विल मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लव्स ट्रांस है, ट्रांसजेंडर, ट्रांस कम्युनिटी, ये ट्रांस जो आपकी शख्सियत के साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, आपको क्या लगता है उसने आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे या आपकी जो कम्युनिटी लाइफ है उस पे कितना इफ़ेक्ट किया है? आपके नुक्ते नज़र को कैसे इफ़ेक्ट किया है इस वर्ड ने? देखिए ट्रांस का जो वर्ड है ये तो अब इंग्लिश में आके यूज़ होने लग गया है, तो बेसिकली तो उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो होता था ख्वाजा सरा। ओके। ठीक है? तो एक मर्द होता है, बच्चा पैदा होता है मर्दाना बॉडी के साथ, बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, और वो मतलब जब बड़ा होता है तो हमें पता होता है कि ये मर्द है, ठीक है? और एक बच्ची पैदा होती है, ठीक है? और वो बड़ी होती है और हम उसे कहते हैं कि ये औरत है। लेकिन ये जो लफ्ज़ ट्रांस है ना, जब ये दोनों चीज़ें आपस में आके मिलती हैं, मर्द और औरत का जब मिक्सचर होता है, यानी बच्चा पैदा तो मर्दाना सलाहियत के साथ होता है, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल होता है या उसकी जो ग्रोथ होती है उसके माइंड की, वो लेडीज़ की तरफ जा रही होती है, मतलब औरत की तरह सोचता है, उठता है, बैठता है, ज़नाना सलाहियतों का मालिक होता है। तो वहाँ से ये जो लफ्ज़ है ख्वाजा सराय या ट्रांस जो है, ये जन्म लेता है। ऑलराइट। तो लाइक अदर चिल्ड्रंस, मैं भी बचपन में मतलब एज़ ए मेल बॉडी पैदा हुई और सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही इंसान को थोड़ा-सा 5-6 साल की एज में थोड़ा-सा आप चीज़ों को सीखते हो, देखते हो, तो मेरे अंदर ये चीज़ फ़ील होने लगी थी कि मैं मतलब कि बाकी बच्चों से अलग हूँ अपने बहन-भाइयों से स्पेशली, क्योंकि अगर मेरा जो भाई था वो जिस चीज़ें जो करता था मैं वो नहीं कर पाती थी, जो मेरी बहन करती थी मैं वो नहीं कर पाती थी। ऑलराइट। तो मतलब कि मुझे फ़ील हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ। हाँ जी। आई गेस उनका कैमरा का कोई इश्यू हुआ है। सो लाइक जैसे अलीशा ने खुद भी हेलो? बताया। हाँ जी, आप मुझे सुन रही हैं? जी, जी, अब ठीक है। पहले कुछ कं प्रॉब्लम हो गया था, अब ठीक है। कंटिन्यू करें प्लीज़। आप बता रही थी अपने अच्छा, मैं स्ट्रगल आपको स्टोरी सुना रही थी, देखिए के बारे में हाँ, बता रही हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जी, जी, मैं मुल्तान के एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, देहाती इलाके से हूँ, तो मतलब आप समझ सकती हैं कि एक बच्चा जो मतलब कि इस तरह की सिचुएशन में हो उसके लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो अभी भी अगर एक लड़की है तो उसको इतना हैरेस किया जाता है, और बच्चा होता है तो उसको इतना हैरेस किया जाता है, तो एक ट्रांस के लिए तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है ना सोसाइटी के अंदर। तो ये तो बहुत लंबी स्टोरी है कि मतलब एक ऐसा हो गया जैसे समंदर को कूज़े में बंद कर दूँ। बस इतना है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ लोगों से सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी सोचा भी नहीं था, अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाया है कि हाँ, दुनिया के चंद जो ट्रांसजेंडर हैं, जो कामयाब ट्रांसजेंडर हैं, उनमें मेरा नाम भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने
सिटी मुल्तान से हूँ, मतलब अब मुल्तान की धरती से हूँ, मतलब मुल्तान से रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, बताती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी अपनी एक पहचान है, मेरा अपना एक इलाका है, कि उस इलाके से मतलब कि एक इतनी अच्छी चीज आप आगे लेकर आ रहे हो, तो मुझे खुशी महसूस होती है। ओके, अलीशा, आप क्या चाहती हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट, कम्युनिटी और स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं, कम्युनिटी हम लोग जो हैं, नॉर्मल लोग, मेरे जैसे लोग हैं जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उनके जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? हम लोग आप लोगों के लिए रास्ता हमवार कैसे कर सकते हैं? आप क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है? मशीया में एक आपकी करेक्शन कर दूं कि आपने कहा कि जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो ट्रांस भी नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है, वो अब नॉर्मल नहीं होते हैं। सॉरी, और नो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि नो ऑफेंस, ओके ओके, आई टू माय नहीं, वर्ड्स कोई बैक। बात नहीं, हाँ जी। नहीं नहीं, हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये भी इंसान है जी, तो मुझे बड़ी हाँ, हैरत होती है, ये भी का भाई क्या मतलब हो गया? सोचने वाली बात है ना कि हम लोग को गूगल या यूट्यूब से डाउनलोड हो गए तो नहीं आए ना, सेम आई आपकी तरह ही पैदा एम हुए हैं, आपकी तरह ग्रोथ किया सारा कुछ। sorry again. No offense. जी, नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा, सॉरी, हम क्या बात कर रहे थे? मैं ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट, कम्युनिटी और जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वो आपका रास्ता कैसे हमवार कर सकते हैं? उन्हें क्या-क्या चेंजिंग्स करने चाहिए आप लोगों के लिए इजी पैसेज करने के लिए? देखो मशीहा, तालीम जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चेंजिंग होती है आपके लिए, ठीक है? जो बच्चा बचपन से अच्छी तालीम लेकर आता है, बड़ा होता है, तो उसका जो माइंड सेटअप होता है एक अनपढ़ इंसान से बहुत अलग होता है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे वहाँ जो है अभी पाकिस्तान बने को 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हमारे जो ट्रांस कम्युनिटी है उसको 70 साल बाद आप शनाख्त दे रहे हो, आईडी कार्ड का राइट्स दे रहे हो उसको, ठीक है, उसको पासपोर्ट बनवाने का राइट दे रहे हो, ठीक है। तो अगर हम ये बात इस तरफ देखें तो अभी बहुत देर है इस चीज के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में जो है बहुत बड़ी चेंजिंग्स हुई हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जैसा कि या वोट का इंदराज हुआ, आईडी कार्ड बनाए गए, पासपोर्ट बनाए गए, उसके अलावा जो है अगर आप आईडी कार्ड पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपकी एक अलग से शनाख्त रखी गई, लाइक जिस तरह मर्द का होता है एम लिखा होता है कार्ड पे, औरत का जो होता है वो लिखा होता है फीमेल, एफ लिखा होता है, और ट्रांसजेंडर का जो है वो एक्स लिखा होता है, यानी अदर, ठीक है। क्योंकि ऑलराइट, कुछ लोग एक्स का मतलब जो है बहुत अजीब तरह से लेते हैं कि एक्स लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या होता है। तो एक्स का मतलब मैं ये भी क्लियर कर दूं, एक्स का मतलब होता है अदर, यानी थर्ड जेंडर। अभी लास्ट जो है 2018 में है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया है, ट्रांसजेंडर लॉ जिसको बोलते हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम कंट्री है कि जिसने मुस्लिम होने के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक पहचान दी है और उसके अलावा उनके राइट्स दिए हैं। इवन के अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में वो राइट्स नहीं है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब 2018 मई में जो है हमें राइट्स दिए हैं, या जो हमारा कानून दिया है। अब मसला ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है एक असूल या ज़ाब्ता कानून जिंदगी का बना लेती है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, लेकिन उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसका मसला आता है। तो सेम चीज हमारे साथ चल रही है, मतलब वो कानून बना तो दिया गया है, उसमें हमारी राइट्स डिफाइन कर दिए गए हैं, हर चीज उसमें एक लाहे अमल तय पा गया है, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। फेडरल लेवल पे तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो सूबे जो हैं उसको कैसे कैसे जो है अलहदा-अलहदा करके जो है अपने तरीके से उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस कम्युनिटी के हिसाब से, उनके रहन-सहन के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब मसला और भी होता है कि गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे इश्यू हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रह रही है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान में 22-23 करोड़ अवाम है, तो हुकूमत ने हर किसी को देखना होता है, तो उसमें एक टाइम लगता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपकी पहचान बना दी गई है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज, और ये पॉजिटिव चेंज उसी वजह से आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव फेसेस हमारे जो हैं वो दुनिया के सामने आए हैं। या लाइक अगर मैं बात करूंगी, आयशा मुगल की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की,
तो पाकिस्तानी पहली गवर्नमेंट थी कि जिन्होंने डेलीगेशन में उसको लिया, और वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन है कि जिन्होंने किसी डेलीगेशन में गवर्नमेंट को जाके प्रेजेंट किया वहां पे। वेरी नाइस, तो ये एक बहुत माशाल्लाह। बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कम्युनिटी के लिए। तो खुशी होती है मतलब कि इस तरह की चीजें देख देख के कि हम लोग जो है अब माशाल्लाह बहुत अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि देखें ये मसला किसी एक घर का नहीं है, ये किसी एक कबीले का नहीं है, ये किसी एक गली का नहीं है। ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं पैदा मुल्तान हुई हूँ तो जो मुझे रहने के लिए अब इस्लामाबाद भेज दिया जाए कि ये ट्रांसजेंडर जी इसका इलाका वो है या वहाँ ये रह। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि हर इलाके में जहाँ पे बच्चों की इन्वायरमेंट, बाकी लोग बच्चे परवरिश पा रहे हैं, देखिए स्कूल्स हैं, सारा कुछ है। अब स्कूल की बात की जाए तो बड़े लोग कहते हैं जी इनके स्कूल अलग हो। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंक्लूड करना चाहिए स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी इंक्लूड करना चाहिए, ना कि हमें अलग स्कूल दिए जाए, अलग कॉलेज दिए जाए, अलग यूनिवर्सिटी दी जाए। लाइक जिस तरह मैं पढ़कर आई हूँ। कम्युनिकेट कर सकें, आप लोगों को जान सकें कि जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हाँ हुआ है बिल्कुल। हाँ मशीया, अगर हम अलग किसी चीज को कर देते हैं ना तो वो उसमें बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। देखो जब तक आप मेरे साथ बैठोगी नहीं, खाओ पियोगी नहीं, ठीक है, हम गैदरिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे हूँ और आप मैं क्या जानना चाहती हूँ आपके बारे में, आप क्या जानना चाहती हैं। जब तक गैदरिंग ना हो तब तक पता नहीं चलता। तो गवर्नमेंट या बाकी जो इदारे उनको यही चाहिए कि जो देखिए हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान माशाल्लाह एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो बजाय इसके कि हम अलग खर्चे करें, अलग से स्कूल बनाएं जिस तरह मतलब बाकी इंस्टीट्यूट बना देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लिए जो इंक्लूजन पे काम हो, ना कि जिसको को कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। वेरी नाइस। और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने किस कदर इम्पैक्ट किया आप लोगों की पॉजिटिव लाइफ में, या आपका इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में सोशल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट करता है, या सोशल मीडिया का जो क्रिटिसिज्म होता है वो आप कैसे फेस करते हैं? हेलो, I guess there may have some internet connectivity issue. Alicia, you're here. आई गेस उनका इंटरनेट का कोई इशू है, वो डील करने की कोशिश कर रही हैं, एंड आई होप आई टेक हर हियर शी इज। तो उन्होंने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम कम्युनिकेट कर सकें उनके साथ। ये जो मिसपरसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए हैं, हम सोचते हैं ये क्या होते हैं यार, ये ट्रांसजेंडर्स क्या हैं, फादर सेरा लोग क्या हैं, और एक ट्रांसफोबिक कंडीशन है, ट्रांसफोबिया, बहुत से लोग गुजरते हैं इस कंडीशन से। तो ज़रूरी है कि हम उनके साथ बैठें, हम उनसे मिलें, हम उनके बारे में जानें, क्योंकि जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट, जब तक आप जानेंगे नहीं, यू कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज। और इससे ज़रूरी है कि हम उन्हें इंक्लूड करें अपनी सोसाइटी में। मेंटल मेकअप चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि 1 मिनट या 1 दिन में नहीं होगा। बट ये हो सकता है, वो कहते हैं ना कि पानी में पत्थर फेंको, रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो वेव्स, बड़ी वेव्स भी बन ही जाएँगी छोटी वेव्स से। तो इट्स नेसेसरी कि हम उनसे बात करें, उन्हें जानें। अलीशा, मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। यू मे फाइंड इट्स ऑफेंसिव, बट आई रियली वांट टू नो पर्सनली, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जब कोई नॉन कंफॉर्म बच्चा पैदा होता है, मतलब जैसे आप, मतलब अगर कोई ट्रांस बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मतलब एक जो आप लोगों का है ट्राइब, उससे वो कैसे कनेक्ट करते हैं? अच्छा मशीहा, मैं आपको एक बात बताऊं कि औलाद जो होती है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है, ठीक है। सूरह शूरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ मैं बेटियां अता करता हूँ, और मैं जिसको चाहता हूँ मिले जुले अफराद पैदा अता करता हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो बे औलाद सारी जिंदगी गुजार देते हैं, ठीक है, तो मतलब उनके पास औलाद नहीं होती, और वो लोग जिनके पास औलाद पैदा होती है और वो उसकी कदर नहीं करते, ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तीसरी चीज आ जाती है ट्रांस का पैदा होना, ठीक है। जब एक इंटरसेक्स बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो माँ बाप जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में ये होता है क्योंकि हमें पता होता है कि इनकी अलग ही दुनिया है, अलग ही वो चीजें हैं, यानी इनको आएंगे ख्वाजा सरा लेकर जाएंगे ये वो। मैं इस चीज को गलत समझती हूँ।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके यहाँ देखें, ट्रांस बच्चा जो होता है अल्लाह ताला की रहमत, नेमत और रहमत, ठीक है, दोनों जो हैं मतलब अल्लाह ताला ने आपको मिक्स करके दे दी हैं, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे बच्चे पे, ठीक है। कौन सा ऐसा काम है जो ट्रांस बच्चा जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो मेरे घर वाले मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। एग्जैक्टली, हम सब बहुत खुश हैं कि आप आई हैं, आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, एंड वी विश, वी होप कि सब ऐसे ही करें, सब आगे आए एजुकेशन में, हर फील्ड में आप लोग आगे आए। वी रियली विश एंड होप। मे बी सम इंटरनेट कनेक्शन इशू, सो इट्स वेरी नेसेसरी। ये बात काफी यू हिट हार्ड, ये क्वेश्चन के बच्चा नेमत है, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। बट let me tell you, we all have faced through this, I guess, this transphobic situation, कि हम गुजरते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम इन लोगों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, हम बात करना पसंद नहीं करते इस कम्युनिटी के बारे में। अलीशा has some issue with this, मैं दोबारा ऐड कर लूंगी उन्हें। So अगर आप लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, you can give me the questions, I'm going to take the questions। सॉरी मशीहा, सॉरी, इंटरनेट में कोई मसला आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, एकदम मतलब के बीच में से गैप हो गया। आवाज आ रही मेरी आपको? आप मुझे क्लियर हैं? हाँ, अच्छा, मैं इंटरसेक्स के बारे में बात करी थी। तो अभी हमने देखा रिसेंटली एयरवाई डिजिटल पे ड्रामा चलता रहा है, खुदा मेरा भी है। बहुत अच्छा उसका कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया उसका, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब एक ऐसा बच्चा जो आपके दोनों सलाहियतों के साथ पैदा होता है, मतलब ज़नाना और मर्दाना, और आप उसको एक्सेप्ट करते हो सोसाइटी में और वो कितना सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। बात ये है कि हमारा जो माइंड सेटअप है, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, अब मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव इस्तेमाल करूंगी तो ये पॉजिटिव जाएगा, अगर इसको मैं नेगेटिव में लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव जाएगा। ट्रांस बच्चा ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आप उसको शुरू से प्रेशराइज करते रहेंगे, शुरू से आप उसको तालीम नहीं देंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे घर में बाकी बच्चों के दरमियान, ये तो वो कभी भी कारआमद शहरी नहीं बन सकता, कभी भी वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि वो लोग बहुत कम होते हैं जो सरवाइव करके अपने आप को ऊपर लेकर आते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है, वो कहते हैं ना, रिश्ते प्यार के होते हैं, तो जब घर से आपको नफरत मिलती है तो फिर बड़े होकर आपके जहन में वो चीज पलती रहती है और आप हमेशा लोगों से जो है ना बदला रखने की सोच रखते हो। तो हमें इस माइंड सेटअप को जो है चेंज करने की जरूरत है कि अगर घर में ट्रांस बच्चा पैदा हो गया तो उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप चुने हुए उन लोगों में से हैं कि आपके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक माहौल ऐसा है, सेटअप ऐसा बन गया। इंशाल्लाह कुछ अरसे में आप देखेंगे कि ये चेंज होने वाला है, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं तो दिन रात ही दुआएं मांगती रहती हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे। करियर काउंसलिंग या पेरेंट्स काउंसलिंग, अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज दे दी जाएं या काउंसलिंग सेंटर्स बना दिए जाएं, या जैसे फॉरम काउंसलिंग फॉरम्स हों जो पेरेंट्स की और लोगों की काउंसलिंग करें, तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। मशीहा, बहुत अच्छी बात की आपने काउंसलिंग वाली। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक देखें कोई भी चीज़ होती है, जब तक उसके फीचर्स का या हमें उसकी डिटेल का पता नहीं होगा, हम उसके फ़ायदे नहीं ले सकते, ठीक है? तो अगर हम घर से ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं, किसी एक बंदे को, अगर आप एक माँ या एक बाप को सेंसिटाइज़ कर देते हैं उसके बच्चे के बारे में, आई थिंक हमने पूरी सोसाइटी को सेंसिटाइज़ कर दिया। वो हमारे यहाँ मुहावरा है, कहते हैं ना कि घर से जाती है तो बाहर से भी जाती है, ठीक है? तो इज़्ज़त ऐसी ही होती है। घर से जब आप डिस्क्रिमिनेट कर दिए जाते हो तो आप सोसाइटी से ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट हो चुके होते हो, ठीक है। तो जब आप मतलब घर से इस तरह की पॉजिटिव चीजें करेंगे, बच्चों में पॉजिटिव चेंज आएगा, तो आप देखेंगे कि सोसाइटी जो है वो चेंज होगी। हम फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, हम क्यों उनकी मिसालें देते हैं? क्योंकि वो लोग जो है वो ना तो जेंडर देखते हैं, ना वो नस्ल देखते हैं, ना वो रंग देखते हैं, ठीक है, ना वो मजहब देखते हैं। वो सिर्फ इज्जत करते हैं, कदर करते हैं तो इंसानियत की, जो कि हमारा मजहब भी हमें कहता है। हमारा इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। हमारा मजहब जो है वो जेंडर का, रंग, नस्ल, इस चीज का कोई वो कंसेप्ट उसमें नहीं है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, काउंसलिंग की जरूरत है। मैं कहती होती हूँ कि अपनी गैदरिंग में जिस तरह हम 5-6 लोगों का हल्का अहबाब होता है, तो हमें एक बंदा जो है उसमें मतलब इस तरह की चीजें बताया करके, एक वो चीज जिसका हमें नहीं पता उसके बारे में सेंसिटाइज करना बहुत अच्छी चीज है, और यही वो चीज होगी जो आगे सोसाइटी में चेंज लेकर आएगी। इट्स अ गुड।
चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं ना, आई होप आगे भी और बेहतर होंगी। लाइक अभी बहुत आपने खुद बताया स्टार्ट में कि कितना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, गवर्नमेंट ने चेंज किया है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। आई होप विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी विश फॉर द बेस्ट। आई विल मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अलीशा। अब आप देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से अब अपना केस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग अब आ रहे हैं सामने, ट्रांस कम्युनिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है, अपना केस बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। व्हाट वाज योर हाइंड्रेंस बिफोर? आप मतलब पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? अब ऐसी कौन सी चीजें बेटर हुई हैं कि अब आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपना केस रख पा रहे हैं, और अब आप लोगों की यूनिफॉर्मिटी आई है आप लोगों में? देखिए बच्चा जब पैदा होता है, ट्रांस बच्चे की ज़िंदगी जो होती है ना, वो कहते हैं ना गोद से गोर तक, गोद से लेके कब्र तक जो है ना, वो मुश्किलों से भरी होती है ना, क्योंकि मैं जितनी मर्ज़ी पावर हो जाऊँ, लेकिन मैं जब घर से निकलती हूँ सुबह ऑफ़िस जाने के लिए, या मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, कार सर्विस, और मैं बाहर अगर मॉल में चली जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, हम जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाए, मैं इस्लामाबाद शहर में रहती हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सेंसिटाइज़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाके वो मुझे फ़ील करवा देते हैं कि मैं इनसे अलग हूँ। ठीक है? तो रुकावटें जो होती हैं, वो ज़िंदगी में आती रहती हैं, और इन रुकावटों को लेकर जब आप साथ चलते हो, तो तब आप ज़िंदगी का असल मानी जानते हो कि ज़िंदगी क्या है। क्योंकि मेरे ऊपर ये चीज़ें जो हैं, ये मतलब कि बीती हुई हैं, घर से लेकर सोसाइटी, सोसाइटी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से लेके मेरी कम्युनिटी, और मेरी कम्युनिटी से लेके अब मैं खुद। तो ये अलग-अलग स्टेप्स से इसमें बहुत सारी हिंड्रेंस आती हैं, लेकिन इनके साथ ट्रांस बच्चे को जो है चलना होता है, जीना होता है, और मैं कहती हूँ कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे की जो ज़िंदगी है, वो इम्तिहान से कम नहीं है। मतलब कि वो फुल ऑफ उसमें है कि आप एक मर्द और औरत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो लोग इतनी मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं, पूरी ज़िंदगी। हमें गुरु कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए। People would like to know, I would like to know. ओके। गुरु कल्चर मैं समझती हूँ कि देखिए, इसमें कुछ लोगों का मेरे साथ इत्तेफ़ाक होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। गुरु कल्चर जो है, हमारे जो ख्वाजा सराह हमारी जो कम्युनिटी है, उसका सबसे खूबसूरत कल्चर जो है, वो गुरु कल्चर है। देखिए, जब बच्चा घर से निकाल दिया जाता है, जब माँ-बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहन-भाई, कम्युनिटी के बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो वो गुरु का डेरा ही होता है जो उसको पनाह देता है, ठीक है? और वो उसको मतलब परवरिश भी करते हैं। कुछ लोग गुरु जो पढ़े-लिखे होते हैं, उनको पता होता है बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, वो उसको पढ़ाते भी हैं। लेकिन वो गुरु जो टिपिकल मतलब कि इस कल्चर में ही होते हैं, मतलब जैसे बधाइयाँ माँगना, डांस करना शादियों पे जाके और इस तरह के, तो फिर वो भी उस बच्चे को उसी तरफ ही ले जाते हैं। तो ठीक है? आपने कल लाइक आप लोग सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम आप लोग डेवलप क्यों नहीं करते कि जब अगर कोई नया बच्चा आपके पास आया, आप उसको तालीम दें, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही इन केस, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, तो आप लोग बेसिक एजुकेशन दें। मसीहा मसला ये आता है कि देखें, अब एक बंदा जो खुद घर से धुतकारा गया हो, निकाल दिया गया हो, मैंने आपको पहले बताया कि जब बच्चा नेगेटिविटी में पलता है, तो उसके ज़हन में भी वही चीज़ पलती है, ठीक है? और वो बड़ा परवान जब चढ़ता है, तो वो उसी को लेकर चलता है। वो कहता है, बस जो मैंने किया है, वो भी यही करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ होते हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे जो होते हैं, बड़े होके पॉलिटिशियन ही बनते हैं। कभी आपने देखा कि किसी को पॉलिटिशियन का बच्चा कोई टीचर लग गया हो या कोई ऐसी जॉब कर रहा हो? ठीक है? तो ऐसा ही होता है। तो वो गुरु जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी तरह से कमाया होता है, तो वो उस बच्चे को उसी तरह से लगाते हैं, और वो गुरु जो पढ़े-लिखे होते हैं, जिनको एजुकेशन का पता होता है, या जो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस काम में आ गए होते हैं, या इस तरह से होता है, तो वो लोग पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन सिस्टम इसलिए नहीं बन पाता, क्योंकि आप 1, 2, 3 लोगों के लिए स्कूल या कॉलेज या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते, और ना ही आप इस तरह इतने वो एम्पावर होते हैं। बेसिक वही होती है, एजुकेशन तो होती नहीं है। एजुकेशन नहीं होगी तो आपको किसी नाव-भाव का तो पता ही नहीं है ना फिर, ठीक है? तो वो बेचारे क्या करें, वो किस-किस से लड़ें, वो कैसे स्कूल बनाएँ, कैसे उनको सपोर्ट ही नहीं, मॉरल्स अगर आप मैं आपकी मिसाल देती हूँ, अगर आप एक ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल खोलती हैं मुल्तान में, मैं देखूँगी आपको कितने लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत कम लोग आएँगे। वेरी ट्रू जी। हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस तरह के सेटअप
जो है वो करे, इंक्लूड करे इन चीज़ों को, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी जो है, वो स्किल जो ट्रेनिंग होती है ना उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब बहुत सारे अच्छे ब्यूटिशियन हैं, उसके अंदर फैशन डिज़ाइनर्स हैं, लाइक इस तरह के काम वो जानते हैं। तो अगर उनको पॉलिश कर दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ कि जो उनके मतलब कि उनके जेंडर से रिलेटेड ही हों, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हों, तो आई थिंक हम पाकिस्तान में मतलब देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, और वो भी एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू आएगा। अगर हम जिस तरह ये फ़ासलाती तालीम होती है, अगर हम इस तरह का कोई निज़ाम तालीम मतलब बना देते हैं कि हम डेरों को आइडेंटिफ़ाई कर लें उनके, और वहाँ जाके हफ्तावार 2 दिन की क्लासेस दे दिया करें, बुक्स दे दिया करें, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब अगर एक लोग जगह पे इकट्ठे हैं तो उन्हें वहां जाके एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही। देखें, ट्रांस आपका को ये पॉइंट बहुत पाकिस्तान में, वैलिड है। हाँ जी, ट्रांस को पाकिस्तान में हमेशा एंटरटेनमेंट समझा जाता है। ठीक है? वी आर तो सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा इस तरफ आता भी है पढ़ाई वाली तरफ, तो हम उसको जो है इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, हम उसको इतना हैरेस कर देते हैं, उसके ऊपर बुलिंग करते हैं कि वो बच्चा जो है वो कहता है नहीं, मैं जिस दुनिया से हूँ बस मुझे तो उधर ही जाना है, मेरे वही लोग हैं, मैंने वही नाचना-गाना है, और मैं तो तालीम की तरफ आऊँगा नहीं। तो ये पहले तो हमें ना माइंड सेटअप जो हमारी सोसाइटी का वो चेंज करना है। ठीक है? लोगों को वो वही बात आपकी आगे कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जब तक सेंसिटाइज़ेशन नहीं होगी, तब तक आई थिंक चेंज भी नहीं होगा। ओके, अलीशा, आपके कम्युनिटी में मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर नो ऑफेंस अगेंस्ट योर कम्युनिटी, इफ यू डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज फाइन, आई जस्ट नहीं, आस्क्ड। देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में तो शादी का जो कांसेप्ट है ट्रांस का, वहाँ तो क्लियर है, वहाँ तो लोग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वहीं आ जाती है कि हम लोग जो है हर चीज़ में अपने मज़हब और इन चीज़ों को लेकर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आके चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कई उलमा जो हैं इस चीज़ के हक में हैं कि वो ट्रांसजेंडर जो मतलब औरत की मुशाबत रखते हैं, औरतों की तरह हैं, उनकी शादी जो है वो कहते हैं कि जी मेल जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ उनकी कर दी जाए। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक औरत की शादी कभी भी आप एक औरत से नहीं कर सकते, या एक मर्द की शादी कभी भी आप मर्द से नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ में मिक्स होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान में कभी ट्रांस मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या इसके बारे में, क्योंकि अभी ये छोटी-छोटी चीज़ें और बहुत सारी करने को हैं, ये अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। एग्जैक्टली, हाँ ये जी, चेंज में बहुत टाइम लगेगा, स्टेप हाँ बाय जी, स्टेप ये सब चेंज बिल्कुल होगा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बट आई होप हो जाएगा। अलीशा, नाउ आई विल आस्क अ क्रिटिकल क्वेश्चन, यू मे फाइंड इट क्रिटिकल। मैं रिसेंट इंटरव्यूज देख रही थी बहुत से ट्रांसजेंडर्स के, तो उसमें उन्होंने ये शो किया हुआ था कि वी हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन सेक्स वर्क, मतलब हमारे पास कोई और जॉब नहीं है। ठीक है, तो ये किस हद तक इस बात में हकीकत है, एंड अगर हम कंसीडर कर लें कि अगर ये सच भी है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों ने, सोसाइटी ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं आपके लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेक्स वर्क को फॉर अ टाइम बीइंग यूज करके आप लोग फिर कोई स्मॉल बिजनेस कर लें या किसी फील्ड में आ जाएं। आई आई वांट टू नो योर क्लेरिफिकेशन कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ट्रांस के बारे में पाकिस्तान में बात करते हैं ना, तो हमारी चीज़ें में जो है ज़हन में 3 चीज़ें घूम रही होती हैं, सेक्स वर्किंग, बैगिंग, डांसिंग। उससे आगे हमारा माइंड जाता ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांस को एज़ एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, ठीक है? वो ये समझते हैं कि ये खुशी के लिए अल्लाह ताला ने हमें कोई तोहफ़ा दिया हुआ है खुशी को ज़्यादा करने के लिए, बस इसको इस्तेमाल करो और छोड़ो, ठीक है? वो ये भूल जाते हैं कि बाकी इंसानों की तरह ये भी इंसान हैं, मतलब खाते-पीते हैं, चलते-फिरते हैं, ठीक है? ये मतलब कि एहसास जो होता है ना, एहसास नहीं है। या इसमें मैं समझती हूँ कि मेरी कम्युनिटी भी जो है वो इन्वॉल्व है कि देखिए इंसान जो है वो जब तक खुद अपने आप को चेंज करने का नहीं सोचता, तो तब तक आप अपना माइंड सेटअप या दूसरों का माइंड सेटअप चेंज करने का नहीं सोच सकते। हमें ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि ये सेक्स वर्किंग हो गई या बेगिंग हो गई या डांसिंग हो गई, ये कोई मतलब कि लाइफ टाइम जो है आपका वो नहीं है, क्योंकि डांसिंग के बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलनी। जवानी में तो आप नाच गा सकते हो ना, एंड में आके क्या होगा? क्या करेंगे आप? बुढ़ापे में आपको पता है औलाद जो होती है वो माँ-बाप क्या नाम है इसका छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं ये भी बहुत करने वाली चीज़ें हैं, इसमें
बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग लगे हुए हैं। मेरी कम्युनिटी के लोग जो हैं लगे हुए हैं, हम लोग सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे ये राइट्स हैं और ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये आप कहती हैं कि सेक्स वर्किंग से कोई स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि लाहौर, कराची या इस्लामाबाद कहीं भी हम देखते हैं कि अब लाहौर में लगा लें हीरा मंडी है, ठीक है? वो लोग मतलब यही काम करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वहाँ से कोई बिज़नेसमैन पैदा हो गया हो उस चीज़ से? नहीं हो सकता। वो क्योंकि एक ऐसी दलदल है, जब इंसान उसमें चला जाता है तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं होता। तो हाँ, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं, जब तक आप उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं देंगे। जब देखो एक इंसान डूब रहा होता है ना, तो हाथ-पाँव मारता है कि मैं बच जाऊँ। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। तो जब बच्चे को घर से निकालेंगे आप, बाहे-तालीम नहीं देंगे, उसको पता ही नहीं है। उसको यही पता है मुझे 2 वक़्त की रोटी चाहिए, तन पे कपड़े चाहिए, ठीक है? और मुझे जीना होगा बस, दैट्स इट। उसका ना तो उसने डॉक्टर बनना है, ना उसने इंजीनियर बनना है, ना उसने पायलट बनना है, ना उसके दिल में कोई ख़्वाहिश है, ठीक है? वो हर चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है वक़्त के साथ-साथ, और उसको यही पता होता है कि अब मैं इस चीज़ में हूँ, तो बस मैंने यही करना है। अलीशा, ट्रांसफोबिया के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइक जो लोग ट्रांसजेंडर्स का एक खौफ है लोगों के दिल में और बहुत डरते हैं लोग आप मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, तो आप उसको कैसे डील करती हैं? आप ट्रांसफोबिक लोगों से कैसे डील करती हैं? ऐसे कोई हरासमेंट का इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें तो? इस तरह के तो बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। लाइक मैं मुल्तान का आपको बता देती हूँ कि मैं एक दफ़ा ईद थी, मैं हमारा जो अस्करी पार्क है, झील जिसको बोलते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे जो मतलब खड़े थे वो सिक्योरिटी वाले, उन्होंने हमें एंटर नहीं होने दिया था कि आप मतलब कि इस तरह आप माहौल ख़राब करते हैं अंदर जाके, और ये वो मतलब वो हरास करने लग गया ना। तो तब मैं बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, मेरे पास अपना स्टूडेंट कार्ड था। तो फिर मैंने उसको स्टूडेंट कार्ड निकाल के दिखाया कि मैंने कहा हम उनमें से नहीं हैं। ये देखिए मेरा कार्ड, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं पाकिस्तान की सिटीज़न हूँ और मुझे राइट है कि मैं पाकिस्तान में किसी भी जगह में तफरीह के लिए जा सकती हूँ। तो फिर उसकी, जैसे आपने बताया ना काउंसलिंग, मैंने थोड़ी-सी उसकी काउंसलिंग की, मैंने बताया उसको कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होते हैं। अब देखें जब पुलिस को हम देखते हैं तो पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ वहाँ उसमें होता है, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो हमें ना कि बुराई को देखना चाहिए, बल्कि अच्छे लोगों को देखना चाहिए कि ताकि आप उसको प्रमोट कर सको और बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी चेंज कर सकें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी आपकी सारी बातों से इत्तेफ़ाक करूँगी। मैं अब कंक्लूड करते जी। हुए अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगी। अनीशा, आप क्या चाहती हैं? क्या रिफ़ॉर्म्स आप एक्सपेक्ट करती हैं गवर्नमेंट से और सोसाइटी से कि क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए? लाइक हमें हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल लें, तो आप क्या चाहते हैं, किस स्टेप से हमें चलना चाहिए? क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप क्या Uh, प्लीज़ कुड यू रिपीट दैट? मुझे थोड़ी-सी वो नेट का थोड़ा इश्यू है। ओके, प्लीज़। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं सोसाइटी से, कम्युनिटी से और गवर्नमेंट से कि आप कौन-कौन से रिफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए? देखें, रिफ़ॉर्म्स की अगर बात करें, तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है हर शख़्स को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, ठीक है? तो बेसिक जो है, गवर्नमेंट को ऐसी रिफ़ॉर्म्स या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए या ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए जिससे ट्रांस जो हैं वो एक्सक्लूड ना हो, वो इंक्लूड हों। मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अलावा जॉब्स की चीज़ें हैं। अब देखिए अगर एक नौकरी आती है तो उसमें मर्द और औरत का तो लिखा होता है, उसमें ट्रांस का कहीं भी नहीं लिखा होता। क्योंकि उन्हें गिना ही नहीं जाता। वो यही कहते हैं कि ये लोग जो है ना पढ़े लिखे होते हैं, ना ये अप्लाई करेंगे ना कुछ। सिर्फ़ सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के कहीं कोई कोटा नहीं होता। कहीं ओके, भी जो लोग हैं वो चीज़ें नहीं दे रहे होते। तो गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की रिफ़ॉर्म्स लाए, इस तरह की चीज़ें करे, लाइक दूसरे सिटीज़न की तरह, मतलब उनको ट्रांस कम्युनिटी को जो है एक्सेप्ट किया जाए और उनको वही हकूक दिए जाएँ, जो बाकी आप शहरियों को दे रहे हैं।
ठीक है? हर चीज़ वो मुहैया की जाए जो आप बाकी शहरियों को दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं केपी में कुछ जगहों पे विज़िट करके आई हूँ, मैं गई थी वहाँ पे, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कि मतलब वो लोग जो हैं शहर का सबसे बदतरीन जगह जो थी जिसमें मतलब कि वर्कशॉप्स और इस तरह के लोग होते हैं, मतलब कि बिल्कुल हम कहते हैं कि एक बस्तियों वाला इलाका जो होता है और उसके अंदर उनको एक-एक कमरे का मतलब उन्होंने घर दिया हुआ था। तो जब मैंने उनसे वहाँ पे पूछा, जाके प्रॉब्लम पूछी, मैंने कहा आप लोग शहर में क्यों नहीं रहते, अच्छी जगहों पे आप मकान लें? तो उन्होंने कहा जी सोसाइटी जो है वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करती, मतलब लोग बुरा मनाते हैं कि हमारी फैमिलियों के दौरान ऐसे लोग रहेंगे तो हमारे बच्चे खराब होंगे। अलीशा, हालाँकि हाँ, आपके दाऊँ कोई राइट नहीं दाऊँ आपसे। हाँ जी, कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई वो नहीं है कि आप किसी को इस तरह कर सकें, ठीक है? जिस तरह आप सिटीज़न हैं पाकिस्तान की, मैं भी सर। तो फिर मतलब कि मैंने लॉ के बारे में उनको बताया, हमारा जो लॉ है, मैंने उनको फिर बताया राइट्स के बारे में, तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक आप उस सर्वाइव करना नहीं सीखेंगे, स्ट्रगल करेंगे थोड़ा था, तो उससे जाके आपको चेंज होना है, अदरवाइज़ तो आपको लोग इस तरह नुक्कड़ लगाते-लगाते अभी तो आप शहर की एक नुक्कड़ में हैं, उसके बाद आपकी क्या होगा कि आपकी एक बस्ती बना दी जाएगी कि वहाँ पे स्पेशली यही लिखा होगा कि ये ख्वाजा सराओं की बस्ती है। ठीक है? तो मतलब कि ये चीज़ें होती है गवर्नमेंट को चाहिए, लोग मकान नहीं देते किराए पे। लोग मकान किराए पे नहीं देते हैं। वो यही कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं और हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब कि वो बताए लोगों को, सेंसिटाइज़ करे, मतलब जिस तरह हम लोग इदारे बनाते हैं, लाइक नादरा का इदारा है, जब बाकी इदारे हैं इस तरह के, तो उसमें इन चीज़ों की सेंसिटाइज़ेशन करवाई जाए, उनको बताया जाए कि ये पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, इनके राइट्स हैं और लाइक जब पाकिस्तान में जहाँ भी चाहें ये मूव कर सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले स्वात में हुआ था कि स्वात में लोगों ने इश्यू उठाया जी इनको, जो लोग बाहर से आए हुए हैं ट्रांसजेंडर, इनको निकाल दिया जाए। इनके पास कोई राइट नहीं, अगर ये सियाहत के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं तो 2 से 3 दिन रुकें, उसके बाद जिनके पास स्वात का आईडी कार्ड है वो रुकेगा, बाकी कोई नहीं रुकेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें देखें, आपके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान में कहीं भी जा सकती हैं। मैं आपको मना नहीं करूँगी कि आप इस्लामाबाद ना आएँ, अगर आपके पास पंजाब का आईडी कार्ड है या आप कश्मीर ना जाएँ, नहीं। पाकिस्तान में आप कहीं भी रह सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है? तो इसी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें लेकर आए कि लोगों को पता चले कि ये कम्युनिटी जो है एक्ज़िस्ट करती है हमारी कम्युनिटी में, ठीक है? अभी जो अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान ने दिए थे इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें 10,400 कुछ लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किए। जबकि जो डाटा है ट्रांस कम्युनिटी का, एनजीओज़ और सीबीओज़ का, वो तकरीबन 5 लाख को छू रहा है, ठीक है? अब हाँ जी, बिल्कुल। वो 5 लाख के करीब है सीबीओज़ और एनजीओज़ के मुताबिक, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनका डाटा दिया जिन्होंने वोट कास्ट किया, मतलब वो 10,400 कुछ लोग थे, जो 2018 के इलेक्शन में जो है सामने आए। इसमें कहीं न कहीं आपकी कम्युनिटी की भी कोई गलती है? कहीं आपको लगता है कि आप लोग भी लेकर किसी जगह पे? नहीं, गलती कम्युनिटी की नहीं है, गलती मैं आपको पहले बता रही हूँ ये है कि वो बच्चा जो घर में जो माँ-बाप के साथ रह भी रहा होता है, तो उसका ये मसला होता है कि अगर आप कार्ड बनवाते हो आईडी कार्ड, मेरा आईडी कार्ड जो उसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? अब एक्स जो है, वो जो मार्क है ना एक्स का, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि वो हमारे ज़हनों में इतना गंदा बैठा हुआ है कि हम लोग कहते हैं कि ये तो कोई अलग ही चीज़ हो गई है ना। एक्स का मतलब वो तो होता है अदर या थर्ड ऑप्शन ना, एक्स का मतलब तो यही है। अब उर्दू में लिख दें अगर ख्वाजा सरा मर्द या ख्वाजा सरा औरत जिस तरह का, तो एक चीज़ तो उससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि सॉरी It's okay, it's okay. It's okay. Take your time. It's okay. Relax. Take your time. I know, Alisha. मुझे नहीं समझ आ रही सीरियसली, मतलब कि मैं वो मेरी चीज़ ज़हन में वो चीज़ें वो घूमती जा रही हैं, मतलब कि मैं हर चीज़ रिपीट होती जा रही है, लाइक जिस तरह बंदा बचपन में चला जाता है ना वापस, तो I लाइक know वो you're through a lot. Gone through a lot. I really appreciate you. आप जिस जगह पे हैं, आपने जो भी struggle face किया, you are a gem. We are really proud to have you here. थैंक यू मुशिया। In the end, I would like to say कोई last message आप देना चाहेंगे कम्युनिटी को, आपके last words? मैसेज मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आती। कहाँ से आपका दिल करे? मैं मैसेज ये वो कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो हमें चाहिए कि हम ट्रांस बच्चों को जो है इंक्लूड करें अपने अंदर और मतलब उन्हें वही प्यार दें जो हम अपने
बेटे या बेटी को देते हैं तो ख्वाजा सरा को भी वही प्यार दें, ठीक है? उनको अलग मत करें कभी भी, उनको अच्छी तालीम दें, ठीक है? उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें, ठीक है? बहन है तो बहनों जैसा प्यार दें, भाई है तो भाई जैसा प्यार दें, ठीक है? देखें, अब मैं मेरी तो पूरी ज़िंदगी जो कहते हैं ना कि एक फाइटिंग वाली लाइफ़ थी ना, मैं यकीन करें मैं 2 दहाइयाँ जो है मैं लड़ के आज इस मुकाम पे पहुँची और अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मैं पाकिस्तान की मतलब कि सेकंड एमफिल स्कॉलर हूँ इस वक़्त। ट्रांस कम्युनिटी की, हाँ जी, और अच्छी जगह पे जॉब भी कर रही हूँ और कम्युनिटी के लिए काम भी कर रही हूँ। तो जब तक हम उनको खुद अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं देंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ बैठेंगे नहीं, दुःख-दर्द नहीं बाँटेंगे, आप यकीन करें अगर ट्रांस कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस दे दी जाए ना सिर्फ़ माशरे में और उनके घर में, सारे मसले हल हो जाएँगे। बस, मैं सबसे पहले कहूँगी कि एक्सेप्टेंस दें। अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, कॉलेज में एक्सेप्टेंस दें और उसके बाद देखिएगा कि बहुत चेंज कैसे आता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, आई रियली एग्री। अलीशा, एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन लेने, व्यूअर्स की तरफ से उनका क्वेश्चन है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल फैसिलिटीज में आपको कोई डिफिकल्टीज फेस होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मशीहा मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ अलीशा का, पेशावर वाली अलीशा का जब मर्डर हुआ था, जब उनको गोलियाँ मारी गई थी। हाँ जी, तो वहाँ पे जब लेके गए थे ना तो अस्पताल में तो वो आगे वो मेल जो थे वो कहते थे कि इसको फीमेल चेक करेंगे और फीमेल जो डॉक्टर थी वो कहती थी इसको मेल चेक करेंगे। अब हुआ उसमें क्या, उसका ब्लड जो था वो बेचारी का बहता रहा और आखिर क्या हुआ कि वो एक ज़िंदा इंसान आपके सामने मतलब तड़पता हुआ इस तरह मर जाए, आप उसको मतलब डॉक्टर होने के बावजूद उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कैसी इंसानियत है? आप सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में? आपको करिकुलम में, सिलेबस में यही चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आप खुद को मसीहा बोलते हो, आप किस चीज़ के मसीहा हैं? मसीहा तो ज़िंदगी अता करने वाले होता है ना? तो उस वाक़ये के बाद जो है पाकिस्तान की वो कहते हैं ना कि वो होता है ना मेडिकल सेटअप उसमें थोड़ा धचका लगा और शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने ट्रांसजेंडर वार्ड बनाए इधर किम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, उसके अलावा केपी में भी अभी ट्रांसजेंडर के लिए अलग से वार्ड दे दिए गए हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ़ इन 2 इलाकों का नहीं है या 2 शहरों का नहीं है, मसला पूरे पाकिस्तान का है। जहाँ पे आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे होते, क्या वहाँ पे 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड आप ट्रांस के लिए मुख्तस नहीं कर सकते? एग्ज़ैक्टली। ठीक है? क्योंकि ट्रांस के लिए मतलब कि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारे जो डॉक्टरों का सेटअप है ना, वो भी बहुत खराब है। वो अच्छी तरह ना तो समझते हैं, ना उन्हें कोई अकल होती है, ना कुछ। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो सिलेबस है या करिकुलम है, इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है आप लोग हर सेक्टर में आगे आएँ। अल्लाह करे कि आप लोगों के रास्ते ईज़ी हो जाएँ, आप लोग हर सेक्टर में आगे आएँ, अपने आप को सपोर्ट करें। हाँ, ज़रूरी है कि आप होंगे तो आप लोग अपने आप को आगे लेके जाएँगे और हम लोग आप लोगों के बैकअप पे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपके साथ पूरी डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। यू नो आई यूज्ड टू बी अ ट्रांसफोबिक वन्स, मुझे बड़ा डर लगता था। एंड देन मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने जाना यार ये लोग मतलब यू आर नो डिफरेंट देन अस, बल्कि हम कभी-कभी ज़्यादा हैवानियत वाली चीज़ें कर जाते हैं। इट वाज़ अ वेरी नाइस सेशन इन द एंड। आपका मैसेज भी बहुत खूबसूरत था, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आई गेस मुझे लगता है यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। बिल्कुल ऐसा ही है मशीहा और दूसरी बात ये है कि अभी तो कोविड की सिचुएशन चल रही है। कोविड के बाद जिस तरह माशाल्लाह आपकी ऑर्गनाइज़ेशन है, आप लोग काम कर रहे हो, यकीन करो मुल्तान से मतलब इतनी सारी ऑर्गनाइज़ेशन सामने आ रही हैं और उस तरह के लोग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो जनूबी पंजाब का इलाका था ना, उसको लोग बड़ा वो कहते थे कि ये तो जी जाहिल से हैं, ये तो इस तरह से होते हैं। लेकिन अब जो एजुकेटेड लोग वहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान के किसी हिस्से से नहीं आ रहे। और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने इलाके का मतलब एक मान हूँ यहाँ पे और मैं अपने लोगों को प्रेज़ेंट कर रही होती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं, जिस तरह पे ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं, आप कोविड के बाद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएँगे, तो आप सेंसिटाइज़ेशंस के सेशन रखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। तो हम ये जो देखिए अगर हम 10 लोगों को सेंसिटाइज़ करते हैं, तो सोच लें कि हम लोग 1000 लोगों को सेंसिटाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? और लाइक यू आप लोगों की मतलब मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह आप लोग बहुत ट्रांस के बारे में बहुत सेंसिटाइज़्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। तो ऐसे ही होता है कि
छोटी-छोटी चीज़ों से चेंज आता है और मैं देखूँगी कि ये बहुत बड़ा चेंज होगा इंशाल्लाह। कोरोना से मुझे याद आ गया, इस कोविड-19 ने कुछ इम्पैक्ट डाला है, मतलब आपकी कम्युनिटी में कोरोना ने क्या इम्पैक्ट किया है? लाइक आइसोलेशन मैं पढ़ रही थी, कहीं आर्टिकल में पढ़ रही थी तो वो बता रहे थे आपका क्लियर नहीं है वॉइस, योर कैमरा इज़ म्यूट। अलीशा का कैमरा म्यूट है। खैर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं इस जी, पॉइंट पे भी। सॉरी मेरी तरफ से वो नेट का थोड़ा और अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कोविड देखिए हमारी तो कम्युनिटी जो थी कोविड से पहले ही आइसोलेशन में रहती है। अभी आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, ठीक है? लोग बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर और ये वो। तो कोविड के बाद जो सबसे बड़ा मसला पता है क्या होना है अब मशीया फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो लोग अगर जिनकी कोई प्राइवेट नौकरियाँ थी मेरी कम्युनिटी में से तो उनकी नौकरियाँ चली गई हैं, ठीक है? और अगर उनका कारोबार था तो वो ख़त्म हो चुका है। मैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जानती हूँ जिन्होंने छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट किए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो लोग बेचारे जो हैं वो फिर उसी ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे और वो ज़ीरो पे वापस आ गए हैं। तो जहाँ पे आम आदमी मुतासिर हो चुका है पाकिस्तान में इस कोविड-19 से तो ट्रांस कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है क्योंकि वो लोग जो बेगिंग करते थे, मार्केटें बंद हैं, फंक्शंस करते थे, शादियाँ नहीं हैं। ठीक है, बधाइयों पे जाते थे तो वो भी कुछ नहीं है, ऐसा गैदरिंग नहीं हो सकती, तो ये मसला अब जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिकल जो है ये इकोनॉमिक चेंज का उसका मसला आ रहा है, तो ये चलेगा भी कुछ अरसा लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी के हालात हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि मेरी पूरी कौम जो है, वो इन मुश्किलात में बाहर आए और अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की तौफीक दे और हमें कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच अपना टाइम दिया, वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नहीं, थैंक यू आप लोगों का है और मैं अब मतलब कि एक्सक्यूज़ करती हूँ उन लोगों से कि क्योंकि मैं लाइव जा रही थी, मेरे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे मेरे इनबॉक्स में कि जब आप लाइव जाएँ तो मतलब शेयर कीजिएगा, लेकिन वो मैं शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत सारे लोग मुझे देख भी होंगे आपके पेज के थ्रू तो अ, सबके लिए मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, प्यार और दिलों में उनके लिए मोहब्बत। जहाँ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपके दिल में लोगों की मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करती हैं। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आई विल एंड अप। अलीशा ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हमारे साथ। जस्ट फ्यू क्वेश्चंस मैं छोड़ के जाऊँगी कि आप लोग खुद सोचें कि अगर यू हैव द अपॉर्च्युनिटी कि आपको लो लेवल पे ले लेते हैं, यू हैव टू कीप अ ड्राइवर, अ कुक और व्हाटएवर, वैसे तो दे डिज़र्व हाई अपॉर्च्युनिटीज़, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल इंसान में से और एक ट्रांसजेंडर में से चूज़ करना पड़े, यू हैव टू कीप योर ड्राइवर। खुद से सोचें, आप किसी ट्रांसजेंडर को अपने घर में इस तरह से रखेंगे? अगर मैं अपने आप को एक नॉर्मल बीइंग बन के सवाल करूँ तो आंसर करना कभी-कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, आपको चेंज करना है खुद को, मुझे चेंज करना है अपने आप को। वी कैन नॉट चेंज द बिलियंस ऑफ पीपल हियर इन पाकिस्तान, आई गेस मिलियंस राइट नाउ एंड बिलियंस इन द वर्ल्ड। वी कैन नॉट चेंज देम। सो यू नो उटोपियन विजन है ये, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ, आई कैन चेंज माय सेल्फ। ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट लेते हैं। थिंक योरसेल्फ, मेक डू योर पार्ट। आप लोग पानी में पत्थर फेंकते रहिए, चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।